So, Radhe Radhe सभी को. My name is Sahil, and from today we will be starting a new series where I will be coming up daily on the YouTube early morning and will be uploading the solutions of the problem of the day, or you can say challenge of the day of lead code especially, and where we will be not coming with only solutions but we will be coming up with the intuition, and the course will be the videos, upcoming videos will be in totally Hindi and English mix, and I will be speaking a bare minimum English so that you can understand what I'm trying to communicate with you. Okay, so we will be not only discussing the solutions and not only the code, but we will be coming up with the intuition, and we will be coming up with the intuition what a beginner can think, because I was also a beginner before some days. Okay, still I am learning every day, but yeah, I know how can we approach and what we think when we are a total beginner. Okay, okay, so let's start with this problem. So let's do problem first. Let's read it. Okay, okay. So the problem is saying that we are given a string as, okay, let me change the color. So we are given an s, a string. Okay, and we have to count the number of unique palindrome of length 3. Okay, and that are subsequence of s. Remember, if we don't are asking for this subarray, we are asking for the subsequence. Note that even if there are multiple, we have to obtain the same subsequence, it is still only counted once. That is, we have to count the unique pair. Okay, let's note down the points which we are getting from the question. Okay, and this is how you can solve, this is how you have to solve the problem, and you should solve the problem. A palindrome is a string that reads the same forward and backward, you must be aware of it. And a subsequence is a string, is a new string generated from the original string with some characters can be of non-related without changing the relative order of the remaining character. Okay, now we got the problem, and now look at into how we can solve the problem. Okay, so first, before moving to the problem, look, so first understand what is the difference between subarray and subsequence. This is where most of the people are still confused. So in subarray you can't skip the index. Okay, but in subsequence you can skip the index. It is no foundation that you can't skip the index, you can skip indexes. Okay, for suppose if I have to calculate the subarray of this, then there will be 1 2 3 1 2 2 3, or 1 2 3. Okay, but if I have to calculate the subsequence of the same array, then there will be 1 2, okay, 3 1 2, okay, 2 3, now 1 3 and 1 2 3. Okay, now you must be observing that there is one more sequence which is added. So this is the difference between subarray and subsequence. You can skip the characters. I can take either like 0 index, then and yeah, it can be 1 3 2. Okay, I can take the last index too. It's totally up to me on the subsequence, but you can't do it like first you take the 0 index, then you take the last index, for say 2, then you take the first index. You can't do this. This is invalid. This is invalid. Okay, I'm marking it with red. So this is the difference between, basic difference between subsequence and subarray. Now let's move to the brute force approach of the above problem. So you must be aware, that, and if you are not aware, let me aware you that if question is asking for the terms like subarray, subsequence, okay, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई सब एरे, सब सिक्वेंस है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ओके, अगर क्वेश्चन में इस टाइप के कुछ वर्ड है, ठीक है, देन यू कैन ट्राई टू थिंक रिकर्जन, ठीक है, बिकॉज रिकर्जन में भी तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें आपको सारे लाइक जनरेट ऑल सब एरे, जनरेट ऑल सब सिक्वेंस, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ एरे, ठीक है, तो उसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो आप रिकर्जन लगाने का सोच सकते हो, ठीक है। अगर मैं बिगिनर होता तो मेरे दिमाग में आता कि अच्छा रिकर्जन ट्राई करते हैं, ओके, देन रिकर्जन से मुझे ये तो पता है ना रिकर्जन से कैसे कैलकुलेट होते हैं सारे एरे, ठीक है, थोड़ा नहीं पता तो मैं देख लेता हूँ। फॉर सपोज मेरे पे दे रखा है एक स्ट्रिंग, ओके, मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखा है
और मुझे उसके सारे सब सीक्वेंस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? सब सीक्वेंस फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं एक बार पहले ए को लूँगा, एक बार नहीं लूँगा, ठीक है। फर्स्ट आई विल टेक ए, देन आई विल नॉट टेक ए, ओके। सो मैं क्या करूँगा कि पहले एक बार ए को मैंने लिया, ठीक है, बी सी, देन मैंने ए को नहीं लिया, ये बी सी, फिर ए बी, ठीक है, सी और ए सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी को लिया, बी को नहीं लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सी को लूँगा और सी को नहीं लूँगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगा ना यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं सी को एक बार लूँगा और एक बार सी को नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, या यहाँ पे ए बचेगा ना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, या अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बार सी को लूँगा, एक बार सी को नहीं लूँगा, अब यहाँ पे भी सेम, सी को लूँगा, सी को नहीं लूँगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट ऑल द सबसिक्वेंट। ए बी एक आ गया, ए बी ए सी, ए बी सी, बी सी, ठीक है। हम पर सबसिक्वेंस क्या गए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए सी, ए बी सी, बी सी इन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। So these are all the subsequence which can be obtained from the string ABC, right? So this is how you can calculate the subsequence. अगर नहीं पता तो you can watch the recursion video of any YouTuber and you will be able to do it. Okay. So मेरे दिमाग में क्या अप्रोच आई, अच्छा यार, I will generate all the subsequence first. Okay, first I will generate all the subsequence. Then what I will do? Then I will be like storing them in a set. Why set? Because यूनिक पूछा है, तो यार सेट मेरा यूनिक का काम कर देता है, मुझे यहाँ इंडेक्स से ऐसा ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं सेट यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा भैया आपने ऐसा क्यों बोला कि अगर इंडेक्स से लेना देना नहीं है तो सेट यूज़ कर सकते हो? बिकॉज अगर आप कोई चीज़ सेट में स्टोर करते हो तो वो इंडेक्स को उथल पुथल कर देता है। वो कभी किसी एलिमेंट को किसी इंडेक्स में स्टोर करेगा, कभी किसी में स्टोर करेगा। अब इसका रीज़न जावा में क्या होता है वो आप पता करना क्या होता है, हैशिंग वगैरह, राइट। अब आते हैं, जैसे हमने स्टोर कर लिया सेट में, नाउ वी विल रन अ फॉर लूप, और फॉर लूप से जो भी हम 3 लेंथ के होंगे, ठीक है, और वो पैलिंड्रोम होंगे एंड पैलिंड्रोम होंगे, उनको देख के हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, और इसे हम कर देंगे रिटर्न, ओके। सो दिस इज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, ओके। सो दिस इज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब यार मेरा मन तो था इसे कोड करने का, बट देन आई डिसाइडेड कि वीडियो हो जाएगी लंबी, एंड दिस यू कैन कोड, दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट जनरेट ऑल द सबसिक्वेंस, स्टोर देम इन सेट, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अब नाउ पीपल विल जनरेट ना ऑल द सबसिक्वेंस, ठीक है। अब अगर एरे का लेंथ है, फॉर सपोज ARR.length दे रखा है आपको, ठीक है, ये 5 दे रखा है, देन व्हाट पीपल डू इज वो रिकर्जन में ना लाइक 4 के भी जनरेट करेंगे सबसिक्वेंस, 5 के भी करेंगे, 4 के करेंगे, ठीक है, 4 के भी करेंगे, 4 के करेंगे ना। 4 के करना क्यों है? अगर तुमसे बोला 3 के करना है तो जैसे ही जो प्रोसेस्ड है, ठीक है, उसका साइज़ 3 हो जा रहा है या 3 से बड़ा हो रहा है तो उसे रिटर्न कर देना है, बैक ट्रैक उसे लाइक रिटर्न कर देना, उसके आगे फंक्शन कॉल ही नहीं करना है, ठीक है। तो इससे आपका थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वॉज हाउ यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर आपको इस ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड चाहिए, आई विल बी ड्रॉपिंग द कोड ऑन गिटहब, बट अगर आपको चाहिए कि यार वो कोड भी मैं लिख के दिखाऊँ, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी डूइंग इट, ओके, बिकॉज आई एम हियर फॉर इट, ओके। सो नाउ गो फॉर द लाइक ऑप्टिमल अप्रोच, ओके। ओके भैया यार ब्रूट फोर्स देखो, अगर यार ब्रूट फोर्स आपने बता दिया, अब आप ऑप्टिमल क्यों बता रहे हो जब कोड रन कर रहे हो? तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड क्वेश्चन, राइट, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड क्वेश्चन जो मैं पूछता था बिगनर टाइम। देखो पता है इनपुट साइज़ अगर तुम जाओगे, इनपुट साइज़ दे रखा है 10 की पावर 5, ठीक है। मैं आपको एक बार वॉक थ्रू करा देता हूँ। इनपुट साइज़ दे रखा है, देखो यहाँ देखो, यहाँ और कहीं मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ इनपुट साइज़ क्या दे रखा है 10 की पावर 5। तो जब भी इनपुट साइज़ 10 की पावर 5 होता है ना, तो लीड कोड का सोल्यूशन या तो O ऑफ n में होना चाहिए या O ऑफ log n में होना चाहिए, n log n में होना चाहिए। उससे ऊपर सोल्यूशन गया तो भाई पक्का TL ही मारेगा, ठीक है। अब ये टेबल कैसे पता चली? ये टेबल भी थोड़ा बहुत
मैंने पढ़ा उससे मुझे पता चल गया, अच्छा इतना होता है तो ये होना चाहिए, इतना होता है तो ये होना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। नहीं तो यू कैन कैलकुलेट इट। एवरेज टाइम जावा कितने पे रन करती है, 10⁻7 इन द रिस्पेक्ट ऑफ जावा, इन C++ 10⁻8 पे रन करती है। 1 सेकंड में इतने ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो कितने टेस्ट केसेस हैं इसमें लीड कोड में दिया नहीं होता है, बट कोड फोर्सेज वगैरह पे टेस्ट केसेस दिए होते हैं, तो हम उस टेस्ट केसेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 7 - x आ जाता है। देन व्हाट यू कैन डू इज़, जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट है उससे इसे डिवाइड करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि यार कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेगी। लीव इट, दिस इज द नेक्स्ट मैटर, आई विल बी शेयरिंग द टेबल विद यू, फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू डायरेक्टली फाइंड इट। मैंने क्या बोला, ओ की पावर n log n, एंड ओ की पावर n चाहिए होता है जब टाइम कॉम्प्लेक्स, जब इनपुट साइज होता है कितना, 10⁵ के छोटे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब नो कम टू बेस्ट अप्रोच, कि भैया यार ऊपर वाला तो TL ही मार देगा, तो नया क्या करना है। अब आता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यार साइज ना यूनिक पैलिंड्रोम का 3 ही होना चाहिए, ठीक है, साइज कितना होना चाहिए, 3। अब एक बार आके देख लेते हैं बाबू कि 3 साइज का पैलिंड्रोम दिखता कैसा है, ठीक है। और सपोज ABC है ना, ABC, समझे, मतलब ABC एक्सरसाइज है ना, तो ABC है, तो ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अब A पैलिंड्रोम है, बोलोगे भैया बिल्कुल है। अभी पैलिंड्रोम क्यों है, इसमें डिफरेंस क्या है यार, अगर कोई भी स्ट्रिंग 3 कैरेक्टर की पैलिंड्रोम हो रही है, और बनाते हैं CBC MVM WVW XMX, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोम क्यों है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग वन थिंग, क्या पैलिंड्रोम जब भी कोई स्ट्रिंग है तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल, राइट। सो अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इक्वल होगा, ठीक है, तभी हम उसे पैलिंड्रोम कह सकते हैं। अब इसको कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम पता लगा लें, अगर कोई एलिमेंट स्ट्रिंग में 2 बार आ रहा है तो क्या वो पैलिंड्रोम बनाने की संभावना रख सकता है, हाँ रख सकता है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है, ठीक है, और वो लगातार के नहीं आ रहा है, मतलब लगातार के अलावा 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो वो सबके साथ पैलिंड्रोम बना देगा ना ये। अब यहाँ पे कुछ भी रख दो आप, दिस विल बी ऑलवेज पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इनपुट जो दे रखा था उसका ABC है, ये हमें इनपुट में दे रखा था। अब देखो, अब A आ गया मेरे पे, एक आ गया मेरे को, ये दूसरा A, अच्छा ये भैया ने बोला था कि नहीं यार लगातार आएगा तो नहीं बना पाएगा, बिकॉज उसके बीच में जगह ही नहीं होगी, है ना, तो लगातार आएगा तो नहीं बना पाएगा। और दूसरा A है, हाँ है, तो मैं इसको लूँगा। अच्छा A, अब इसके बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, तो एक बार A को रखूँगा, एक बार B को रखूँगा, एक बार C को रखूँगा, कितने पैलिंड्रोम बन गए, 3 बन गए। अच्छा इसका आंसर 3 है क्या, अरे यार इसका आंसर भी 3 है, समझे, कुछ समझे, तुम समझ गए, ठीक है। सो दिस इज़ द केस कि व्हाट वी कैन डू इज़, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक यूनिक कैरेक्टर के लिए हम इस स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम एक यूनिक कैरेक्टर फाइंड कर लेंगे, यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, इन स्ट्रिंग, ठीक है। देन उसका फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर है ना, लास्ट कैरेक्टर, उसमें लास्ट माइनस फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्यों, अभी बताया, अगर यार दोनों बराबर होंगे तो इसके बीच में आप कुछ घुसा ही नहीं पाओगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यार सब्सिक्वेंस में तुम पहले इसको ले लोगे फिर इसके बाद किसी को ले लोगे फिर इसको ले लोगे, तो सब्सिक्वेंस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप हम सेटिस्फाई कराएंगे। देन व्हाट वी कैन डू इज, इस फर्स्ट हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर I इक्वल टू फर्स्ट। अब फर्स्ट आएगा, फर्स्ट प्लस 1 आएगा, यार फर्स्ट तो वही करेक्टर है ना, फर्स्ट इज दैट A ओनली, तो हम उसके आगे से एक चलाएंगे, राइट। फर्स्ट प्लस 1 से लेके हम चलाएंगे लास्ट, अब लास्ट भी वही करेक्टर, लास्ट के एक पहले तक चलाएंगे जो फॉर लूप अपने आप चलता है, ठीक है। फर्स्ट से लेके हम लास्ट तक चलाएंगे फॉर लूप, फर्स्ट प्लस 1 से लेके लास्ट तक हम चलाएंगे फॉर लूप, ठीक है।
एंड इसमें जितने भी कैरेक्टर आए, नो मैटर वो यूनिक हैं या एक एक बोला, जितने भी कैरेक्टर आए उसे हम एक सेट में स्टोर कर लेंगे, सेट में या एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एंड जो आंसर होगा, जो आप काउंट लेके चलोगे, उसमें उस एरे का या सेट का साइज को कर देंगे प्लस, ठीक है। एंड इससे आपका पता चल जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा इससे। सो इतना इजी था, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू गेट द इंट्यूशन। ब्रूट फोर्स से कैसे हम इस पे आए, ठीक है, वो आपको पता चला होगा। एंड दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट वीडियो, सो आई विल बी इम्प्रूविंग डे बाई डे, सो बी देयर विद मी। नाउ लेट्स डिस्कस द कोड, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड, देखो दिस इज़ हाउ आई कोड एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कोड। फर्स्ट एट राइट द ब्रूट फोर्स, ठीक है, जो कमेंटेड पार्ट है वो नहीं चला तो देन आई कम विद दिस सोल्यूशन। सो पहले हमने एक आंसर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन हमने एक मेन सेट बनाया, जिसमें मेन सेट में वी विल बी स्टोरिंग द यूनिक कैरेक्टर इन द इनपुट स्ट्रीम, ओके। हमने यूनिक कैरेक्टर को स्टोर कर लिया। अब हम हर एक एलिमेंट पे, सेट के हर एक एलिमेंट पे हम कर रहे हैं आइटरेट फॉर ईच लूप की मदद से। हमने लेफ्ट को -1 रखा, राइट को -1 रखा, क्योंकि इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने लेफ्ट का इंडेक्स स्टोर कर लिया, सबसे लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लिया हमने स्ट्रिंग का, ठीक है। इसे मैं लास्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके लिए आसानी हो। और कहाँ है लास्ट, समझ गए ना तुम, इसे लास्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमने फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स का उसका स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने पहले चेक किया यार, अच्छा या तो स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर एटलीस्ट है ना उस कैरेक्टर एलिमेंट के, उसने बोला है। अच्छा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, 2 से ज़्यादा क्या 2 के इक्वल का, उसने बोला है। तो हमने एक हैश सेट क्रिएट कर लिया, यू कैन क्रिएट एरे 2, ठीक है। उसमें हमने सारे एलिमेंट ऐड कर लिए, हमने उस साइज़ को कर दिया प्लस, ठीक है। और हमने लास्ट में क्या रिटर्न कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया आंसर को, ठीक है। और इसे आप सबमिट करोगे, इट विल पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके दिखा देता हूँ, ओके। सो cool, it has passed all the test cases and it is pretty fast too. So this is how you can generate the sub array, every sub array, okay. So thanks for watching, and as this is my first video, so be there with me, do like, share, subscribe and share this with your friend. And if you want to connect with me on LinkedIn, you can search Sahil Chaudhary and you will be finding me, Sahil Chaudhary HIX Lab, you will be finding me. So thanks for your time. Bye. Take care.